So suppose our reaction is exothermic, so its opposite reaction is endothermic, right? Okay, always in reversible reaction, suppose forward reaction is exothermic, so always its backward reaction is endothermic. So we can say simply conclude कर सकते हैं कि when for a reaction when we increase temperature, equilibrium किस साइड में शिफ्ट होगा हमारा? That reaction will be that reaction that reaction is endothermic with temperature. ओके, तो वहां पे हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक से हमें पता लगाना है. इफ फॉरवर्ड इज एक्सोथर्मिक, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन इज लो टेम्परेचर, और सपोज फॉरवर्ड इज एंडोथर्मिक, ओके, तो दैट टाइम फॉर दिस रिएक्शन व्हेन वी वांट टू शिफ्ट ए फॉरवर्ड ऑलवेज, तो फॉरवर्ड के लिए हमें टेम्परेचर फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हाई. Okay, because in endothermic reaction amount of heat is required, so for this reaction we have to need more amount of energy. Okay, so like the pressure effect is clear, temperature effect is clear. Now next one is catalyst. In presence of catalyst, reaction shift in which direction? Yes, Reacted. in presence of catalyst, both The reaction becomes fast. Yes, not only forward or backward, है ना? Both reactions become fast. Yes, so reaction attains equilibrium quickly. Okay, suppose it takes 20 minutes, 30 minutes. So in presence of catalyst, reaction attains equilibrium within seconds. Is it clear? Yes. Because or what is the activation energy? Yesterday we have discussed, है ना, reaction path. Each and every reaction having some amount of energy is required. Okay, that is called additional energy. Reactant की itself energy है. Suppose मेरी energy suppose 50 किलो जूल है, but मुझे हिल क्रॉस करने के लिए कितनी चाहिए? 100. तो मुझे एक्स्ट्रा फूड लेना पड़ेगा ना. तो दैट एडिशनल फूड to make my energy 100 kilojoule, so that is जो 50 extra मैंने लिया, that is my activation energy. But suppose like that, okay, कौन बच्चा एक्टिव हमारी क्लास में जिसकी 100 है, उसको नहीं जरूरत है? दीपल को सपोज दीपल स्ट्रॉन्ग है ना, वो कहेगी नो मैडम मेरी तो ऑलरेडी 80 पे मैं हूं, मुझे 20 चाहिए. इट मीन्स दीपल की एक्टिवेशन एनर्जी कम है. तो ऐसा ईच एंड एवरी रिएक्शन हैव सम एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स. ओके, राइट, लाइक दैट. तो कैटलिस्ट इफेक्ट हमें क्लियर आ गया. इट डज नॉट चेंज वैल्यू ऑफ के. It does not change composition of product and reactant at equilibrium. Only in presence of catalyst, reaction attains equilibrium quickly. So can you say activation in presence of catalyst, enthalpy change? Yes, student. It is sometimes asked such type of questions. In presence of catalyst, No, ma'am. no change. Enthalpy of reaction does not affected. Okay. Gives free energy change of the reaction. It will be changed in presence of catalyst. No, ma'am. I don't think so. Del G is equal to, अगर हमने एक रिलेशन भी देखा, -RT log K. Okay, it also does not affected. Then third one is equilibrium constant. No. No, change. ma'am. Okay. Okay, only one thing is in presence of the, why do we add catalyst? Na question arise in our mind. So there Man, is to no decrease the time. Delta U will change. delta U. No. Ma'am, the time will be decreased, nothing else. Yes, but reaction reached at equilibrium, because किसी भी reaction में, reversible reactions में, reaction का जब तक equilibrium आएगा तब तक reaction चलेगी. उसके बाद तो reaction stop जैसी हो जाएगी, but actually not stop, है ना? Because
दैट टाइम जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना है उस रिएक्शन का उतना बन जाएगा. ओके, तो सपोज रिएक्शन टेक्स टू रीच इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 days 3 days है ना. तो ऐसी रिएक्शंस को हम उनका टाइम रिड्यूस करने के लिए कि रिएक्शन में एटलीस्ट जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा हम उसको सेपरेट आउट कर लेंगे, तो फिर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी. जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा फिर सेपरेट आउट कर लेंगे. ओके, तो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम जल्दी जल्दी आता रहे. ओके, तो रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम क्विकली in presence of catalyst. Clear? This one is concept. Okay, sometimes students think that catalyst की presence में reaction fast हो गई, but both reaction forward as well as backward affected in equally in presence of catalyst. Okay, दोनों ही reactions fast हो जाती है, forward भी और backward भी. Okay, so these all things are constant, nothing change in presence of catalyst. Only reaction attains equilibrium quickly. Okay, I think no any doubt here. No, ma'am. Okay, now fourth one is by adding of inert gas. These are important factors, children, है ना, but our concept is clear, suppose, so no any confusion. Okay, because of first concept is in expression of equilibrium constant, we are using active mass, molar concentration. Okay, so when we increase pressure, decrease volume, increase volume, so active mass of reactant and products also would be changed. है ना? So like that, this one is keep in your mind. We are using here active masses of reactants and products. So now next effect is like that, our fifth effect, by adding of inert gas. By adding of inert gas, like that, inert gas means helium, neon, argon, like that, है ना, such type of gases which are not involved in reactions. Okay, reaction mixture में हम सिर्फ ऐड करेंगे तो वो reaction mixture से कोई reaction नहीं करेगी. Okay, so such type of gases like helium, noble gases हमारी helium, neon, like that, वो हम किसी रिएक्शन मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं. तो देयर आर टू कंडीशंस, बाय कांस्टेंट वॉल्यूम. ओके, फर्स्ट कंडीशन में हम इनर्ट गैस कहां ऐड कर रहे हैं? बाय कांस्टेंट, कीपिंग कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड सेकंड वन इज एट कांस्टेंट, adding of inert gas at constant volume, and another condition is at constant pressure. Pressure. Yes. Okay, so first condition we are taking at constant volume. हम inert gas add कर रहे हैं but reaction mixture का volume जो है constant रख रहे हैं. Okay, that time volume अगर constant है, बाकी तो हीलियम नियॉन का और कोई काम ही नहीं है रिएक्शन मिक्सचर में. ओके, दे आर नॉट टेकिंग इन पार्ट इन रिएक्शन, these gases. So when we are adding at constant volume, so no change in concentration of reactant and products. Okay, because volume is constant. Okay, so no effect on equilibrium. No effect on equilibrium. When we are adding inert gas like helium gas, neon gas at constant volume, that time no effect on equilibrium, because volume is constant. So each reactant and product के जो active masses है, active concentration है, concentration in mole per liter does not change. Clear? Okay? Yes, ma'am. But at constant pressure, Ma'am, volume increases. प्रेशर इज कांस्टेंट है ना, बट वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट. यानी यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर इज गिवन बट वॉल्यूम इज नॉट कांस्टेंट. तो व्हेन वी ऐड गैस, गैस के तो नंबर volume बढ़ जाएगा, मैम. के साथ क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली इक्विलिब्रियम का प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट चेंज हो द जाएगा. व्हिच लॉ?
ये कौन सा गैस लॉ है हमारा? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, number of volume of gas is directly proportional to the number of moles of gases, number of molecules of gases. Which law? एवोगाड्रो लो। वेरी नाइस, एवोगाड्रो लॉ, है ना। हम डिफाइन उसको वैसे भी करते थे कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो V is directly proportional to N. At STP, all gases occupied 1 mole of all gases occupied which volume? At STP 22.4 liter. 22.4 liter at when we are taking pressure 1 atmosphere. STP. और 22.7 वो भी STP कंडीशन है, बट प्रेशर दैट केस में 1 bar. बोथ आर STP, है ना। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। जब प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं तो थोड़ा वॉल्यूम कम आता है, 22.4 लीटर, एंड जब प्रेशर 1 बार लेते हैं तो 1 बार इज स्लाइटली लेस देन 1 एटमॉस्फेयर। ओके, बट कैलकुलेशन में इजी होता है। नाउ ए डेज 1 एटमॉस्फेयर इज रिप्लेस्ड बाय 1 बार। ओके, यस। तो अगर आपने हीलियम नियॉन रिएक्शन मिक्सचर में ऐड किया है तो रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हियर नो कंडीशन ऑफ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बाय एडिंग इनर्ट गैस वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इंक्रीजेस। ओके, तो what is the effect on each reactant and product की concentration पे क्या इफेक्ट आएगा? मैम कम हो जाएगा। Yes, active masses of each reactant and product decreases. Okay, so concentration of each reactant and product decreases by adding inert gas. Why? Because by adding volume of reaction mixture increases, so molar concentration of each reactant and product. Reactant represented by R and product by P. Okay, molar concentration of each reactant and product decreases. Right? अब now for reaction में अगर बात करें दोनों ही साइड डिक्रीज हो रहे हैं, इट्स ओके, बट विच साइड डिक्रीजेज मोर? दैट साइड नंबर ऑफ मोल्स आर मोर, है ना। तो ये भी इफेक्ट अगर डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज इक्वल टू 0, तो नो इफेक्ट। उस केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि दोनों ही साइड डिक्रीज सेम हुआ। बट फॉर द रिएक्शन जहां पे डेल्टा Ng इज नॉट इक्वल टू 0, उन रिएक्शंस में आप देखेंगे कि जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उस साइड डिक्रीज ज्यादा हुआ। तो टू काउंटर बैलेंस उस साइड रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी हमारी, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। क्लियर और नॉट? यस मैम। बिकॉज बोथ साइड डिक्रीज हुआ, लेकिन ज्यादा डिक्रीज किधर होगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ओके, तो उसको बैलेंस करने के लिए इक्विलिब्रियम हमारा उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो इन केस ऑफ बाय एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, equilibrium shift in the direction where number of moles are less. Okay, so their equal number of moles are less. So in this case equilibrium, yeah, direction of the reaction equilibrium shift in the direction where number of moles are less. Okay, so like that अगर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ना, यही हमारी गैसियस रिएक्शंस है और इन्हीं पे बेसिकली हम इन इफेक्ट्स को स्टडी करते हैं। N2 + 3H2 फॉर्म 2NH3,
तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस के लिए एडिंग इनर्ट गैस इज गुड और नॉट? Yes, ma'am. प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया के लिए अगर हम इस रिएक्शन मिक्सचर में इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं हीलियम नियम, तो इट इज गुड और नॉट? Because here product side number of moles are less. Okay, so when we add inert gas like helium or neon, so equilibrium shift in the direction where number of moles are less. So it is good, ma'am. It is good. देखो बेटा, आई थिंक मुझे लगता है मैंने भी थोड़ा उल्टा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। दोनों ही साइड डिक्रीज हुए, बट किस साइड डिक्रीज ज्यादा हुआ? Product side. प्रोडक्ट साइड है नहीं, मतलब जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा उधर डिक्रीज ज्यादा हुआ, उधर डिक्रीज ज्यादा हुआ ना। जैसे ये तो 2 Reacted. का हाफ ही हुआ, लेकिन ये 4 का 2 हो गया, यानी 2 टाइम्स डिक्रीज मैम इधर वापस ज्यादा हुआ, बता दो। है ना। तो इधर डिक्रीज ज्यादा हुआ तो मींस रिएक्शन किस साइड शिफ्ट होगी? यस, इसको करेक्ट करते हैं बेटा। मैम कंसंट्रेशन कम होएगा ना, आपने वहां पर वो लिख रखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। मोलर concentration of each reactant and product decreases. Is it clear? है ना? Yes, ma'am. वहां किस तक तो साइड ठीक है। डिक्रीज ज्यादा होगा? जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, है ना। एक तो आपको 2 का हाफ 1 ही हुआ, इधर 4 का हाफ कितना हो गया? 2 हो गया। तो ओके, तो इस साइड हमारा डिक्रीज ज्यादा हुआ जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ओके, तो टू कंपनसेट कॉन्सेंट्रेशन देयर डिक्रीजिंग इज मोर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। यस स्टूडेंट, है ना। ये अच्छे से हमें देखो, हमारा भी गड़बड़ हो गया। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे अगर हमने एडिंग इनर्ट गैस किया तो इक्विलिब्रियम हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, यानी अमोनिया से ज्यादा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनने लगेगी। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर मोर। ओके बेटा, नॉट लेस। ये यहां करेक्शन कर लो थोड़ा सा। तो इट मीन N2 और 3 हाइड्रोजन के मिक्सचर को हमें प्योर फॉर्म में लेना है, कोई इनर्ट गैस नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अपोजिट प्रोसेस हो जाएगा। पहले आप लोग अच्छे से अपने माइंड में सेट करो। वॉल्यूम इंक्रीज, ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। आई थिंक दिस वन इज क्लियर। ओके, बट विच साइड decreasing in concentration more, their number of moles are more. Okay, जैसे I have 100 rupees, you have 50 rupees. ओके, हम करें कि दोनों का ही 50 कर दो, तो मेरे 100 में से तो सीधा 50 गया, आपका कितना गया? 25 ही गया। तो किसमें डिक्रीजिंग ज्यादा हुआ? 100 में। 100 में, है ना। तो इसी ऐसे ही सेम यहाँ हमें समझना है कि बोथ साइड ही डिक्रीजिंग हुआ बाय एडिंग इनर्ट गैस, बट प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो उधर डिक्रीजिंग इन कॉन्सेंट्रेशन मोर, सो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन कि वो उस जो डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन है उसको काउंटर बैलेंस कर ले। राइट? एनी डाउट? No, ma'am. No. Okay, so when we add inert gas at constant pressure, constant volume पे no effect, but at constant pressure equilibrium shift in the direction where number of moles are more. Okay, because their decrease in active masses or molar concentration of either reactant or product जो भी है ज्यादा नंबर में उनमें ज्यादा होगा। ओके, इस रिएक्शन में इस तरह हो जाएगा। Another reaction is like that, decomposition of PCl5. In this reaction, number of moles are product side more, है ना। तो here equilibrium shift in the by adding inert gas फॉरवर्ड In the product side. Forward Yes. direction. In the product इस side. रिएक्शन के लिए अच्छा है। Here equilibrium shift forward direction, here equilibrium shift backward direction. Backward direction. Backward direction. Very nice बेटा। Ma'am, Yes बेटा। one doubt. Yes, yes. मैम अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा और अगर इनर्ट गैस उस रिएक्शन में पहले से इन्वॉल्व होगी तब कोई चेंज होगा क्या?
अच्छा ऑलरेडी है उस रिएक्शन में, है ना? हाँ यस मैम। एक्चुअली बेटा रिएक्शन अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी रिएक्शन में जैसे इफेक्ट तो क्या होगा कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, दैट टाइम हम तो रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम वही मान के चल रहे हैं ना, तो दैट टाइम और अदर गैसेस भी हैं तो वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ऑलरेडी रिएक्शन अटेन्स इक्विलिब्रियम सपोज, और हम और ऐड करना चाह रहे हैं, ओके या वैसे भी कह सकते हैं क्योंकि इनर्ट गैस से अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा कॉन्सेंट्रेशन पे, बट एडिंग इनर्ट गैस से अगर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता है तो दैट केस में हम बोलेंगे कि एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स डिक्रीज हो गए, है ना? तो नॉर्मली आपकी रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम में है, उस पर हम इफेक्ट कर रहे हैं बेसिकली, ओके तो वहां पे इफेक्ट नहीं आएगा बेटा। आप तो अपने माइंड में रखना कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, दैट केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट कांस्टेंट प्रेशर पे है तो वॉल्यूम एक्सपेंड हो सकता है, तो वो गैस अपना भी वॉल्यूम रखेगी एक, वो रिएक्शन मिक्सचर का ही वॉल्यूम नहीं है ना, क्योंकि गैस के केस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, ओके तो दैट मैम टाइम लेकिन उसमें रिएक्शन क्वेश्चन चेंज हो सकता है। हाँ चेंज हो सकता है बेटा डेफिनेटली, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उस केस में हमारे जो एक्टिव मासेज हैं वो तो कम ही आएंगे ना रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, क्योंकि इनर्ट गैस के कारण भी हमारा वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है रिएक्शन मिक्सचर का, तो अफेक्ट करेगी, ओके अगर इनर्ट गैस ऑलरेडी भी प्रेजेंट है, यू आर राइट, तो हम ऐसी रिएक्शंस में ट्राई करते हैं ना, जैसे इस रिएक्शन में हम कहेंगे कि कोई इंप्योरिटी नहीं हो पहली वाली रिएक्शन में, बट इस गैस में हम सोचेंगे कि नहीं ऐड कर देंगे तो अच्छा है, इक्विलिब्रियम और हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, है ना, ओके मैम। लाइक दैट, ओके और one more reaction like that, N2 plus O2 form 2NO. In this reaction equilibrium shift in which direction? मैम नो इफेक्ट ना, दोनों का Equilibrium. एनर्जी तो जीरो है। Equilibrium. Very nice beta, है ना? Equilibrium. Because here both side decreasing in concentration is same, because here 2 moles, here also 2 moles. Reactant side and product side number of moles are same, no effect. ओके सेम प्रेशर का इफेक्ट यहां भी नहीं पड़ रहा था ना आपका, जब हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा था तो दैट टाइम नो इफेक्ट, क्योंकि प्रेशर इफेक्ट में भी हम वही बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन विच डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है या ज्यादा, तो इधर तो कोई चेंज ही नहीं है आपके नंबर ऑफ मोल्स में, तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट अफेक्टेड बाई एडिंग इनर्ट गैस, ओके यस। तो ये हमारे ऐसे वेरियस फैक्टर्स थे और ली चैटलियर प्रिंसिपल, होप सो आप सबको ये सब क्लियर हो गया अच्छे से, है ना? कई बार हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन पूछा जाता है कि रिएक्शन कैसे शिफ्ट होगी, किधर शिफ्ट होगी, लाइक दैट, ओके तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम। ली चैटलियर प्रिंसिपल, effect of concentration, effect of pressure, effect of temperature, effect of catalyst, okay, and effect of inert gas. At constant volume, no effect. At constant pressure, equilibrium shift in the direction where number of moles are more. Am I right now? यस मैम। Okay, yes. तो ये हमारा था केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना, और केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेस इन Kc और ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस स्टेट, ओके तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे जहां ऑल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम स्टेज में हो तो क्या बोलते हैं उसको? होमोजेनस यस होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑल आर इन सेम स्टेट, ओके and one more is reaction quotient, okay like ये reaction हमारी कोई भी A plus B C आई थिंक मैंने थोड़ा आइडिया तो दिया आपको रिएक्शन क्वोशिएंट का, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं QC से। मैम मैं इसी की बात कर रही थी। अच्छा इसी की बात कर रही थी आप, क्वोशिएंट, यस मैम। okay it is the ratio of not at equilibrium time, at any
टी टाइम पे अगर आप रेशियो ऑफ कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं, लाइक दैट इसको हम एक्सप्रेस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी प्रोडक्ट इट्स पावर इज डी, न्यूमेरिकली जो भी इनके कोफिशिएंट्स है वो रेस टू पावर जाएंगे। रिएक्टेंट ए की कॉन्सेंट्रेशन, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन कौन सी है हमारी, यस Molarity विच कॉन्सेंट्रेशन, per liter. मोल पर लीटर, एक्टिव मास भी बोलते हैं उसको, मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलते हैं। ओके, एट टी टाइम, ओके, वी डोंट नो कि रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम और नॉट। ओके, एट एनी टाइम रिएक्शन मिक्सचर में अगर हम प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच कॉन्सेंट्रेशन टर्म raised to power equal to their stoichiometric coefficient present in the balanced chemical reaction. Okay, तो एट एनी टाइम अगर हम जो रेशियो निकालते हैं तो उसको हम रिएक्शन क्यूशिएंट बोलेंगे। ओके, या कॉन्सेंट्रेशन क्यूशिएंट है ना, रिएक्शन के बजाय भी इसको क्या वर्ड यूज करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली हमारी रिएक्शन में नॉर्मली हम देखते हैं कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है। ओके, बट आफ्टर टी टाइम हम देखते हैं कि नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप जैसे कोई अगर गैसियस रिएक्शन लिख रही तो प्रेशर मेजर करके देख सकते हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो एट एनी टाइम बट व्हेन रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम, लाइक आपको अगर अपीयरेंस आ रही है कि रिएक्शन स्टॉप जैसी हो गई आपकी, तो दैट टाइम when reaction reached at equilibrium, that time ratio of, यही आपकी कौन सी concentration हो जाए that time, when reaction reached at equilibrium, no change in composition of products and reactant. Okay, that condition आप लोगों को already बता दी कि means rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction. That time आपकी each reactant and product की concentration में like that N2 plus 3H2 give 2NH3। कई बार ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को भी आता है ऐसा कि आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ टाइम कैसे रिप्रेजेंट करोगे ना, तो दैट टाइम ऐसा ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। लाइक दैट दिस वन इज द ग्राफ, हियर वी आर टेकिंग टाइम, है ना, विथ टाइम हाउ चेंज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। Here concentration of N2, concentration of H2 and concentration of like NH3. Okay, तो इनिशियली NH3 concentration क्या होगी जब टाइम इज इक्वल टू जीरो, जीरो होगी मैम, यस जीरो। ओके, बट विथ टाइम NH3 concentration increases like that. ओके, इस टाइम के बाद वो हम देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं इंक्रीज हो रही है। व्हाई? बिकॉज मैं इक्विलिब्रियम में पहुंच गई हूँ। यस, रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। यस बेटा, ओके, तो दिस इज रेशियो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया लाइव लाइक दैट। क्योंकि अब हमारा देखो रेशियो 1:3 है, तो हम हाइड्रोजन का रेशियो हमें 1:3 लेना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी रिएक्शन नहीं होगी। यू नो ना अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट, यस ओके, मैम, है ना, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें, तो अभी हम इसका जो ग्राफ है H2 का ग्राफ हम थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करेंगे, इसकी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हम ज्यादा लेंगे, तो H2 की कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे ये भी आती आती हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। ओके, ग्रेजुअली डाउन हो रही है हमारी H2 की कॉन्सेंट्रेशन और कम हो गई। ओके, और रिएक्शन मिक्सचर में हमारे इनके रेशियो भी पता है 1:3:2। तो इस तरह हमारी, और H2 की जो कॉन्सेंट्रेशन हो इसको हम नीचे बनाएंगे थोड़ी, और H2 की कॉन्सेंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में हमेशा जो इनका रेशियो है, यानी इसका जो ग्राफ हम थोड़ा इसको नीचे बनाएंगे। NH3 का भी ट्वाइस है,
ओके, ये भी कम होती जाएगी, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गई। और सबको कांस्टेंट एक ही टाइम पे बताना है, ये वाला ध्यान रखना हमें। सबकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट एक ही टाइम बताना है। जब अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई तो H2 भी कांस्टेंट हो जाएगा, N2 भी। अंडरस्टूड? यस मैम। है ना? सेम टाइम पे, क्योंकि अमोनिया अगर कांस्टेंट हो गई तो H2 भी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो इट मींस दैट टाइम रिएक्शन रीच्ड एट, इस टाइम पे हमारी Equilibrium. रिएक्शन किसमें पहुंच गई? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, लाइक दैट। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन 0 बतानी है, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम बता के उसको डाउन लाना आपको, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, तो कई बार ऐसे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम, हाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट चेंज विथ टाइम, तो ये उसका ग्राफ है हमारा। ओके, when reaction reached this time, okay, इस टाइम पे अगर हम इस टाइम या इसके बाद अगर हम कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालते हैं, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, क्लियर? तो नाउ Yes, और ma'am. जैसे ही रिएक्शन टी टाइम और आफ्टर टी टाइम, रेशियो ऑफ product of concentration of products to the product of concentration of reactant is called equilibrium constant. ओके, और इससे पहले वाला अगर जो भी है हमारा, ओके, वो है मींस कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। ओके, तो अगर कंसंट्रेशन कोएफिशिएंट जब तक के इक्वल नहीं हो जाता, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती रहेगी। बट सपोज आपने रिएक्शन करते करते आपका मन हुआ उसमें अमोनिया डाल दिया आपने, तो दैट टाइम QC आपका ज्यादा हो जाएगा। ओके, और QC ज्यादा होते ही रिएक्शन की तो टेंडेंसी क्या है? फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन मोस्ट स्टेबल स्टेज इज इक्विलिब्रियम स्टेज। रिएक्शन हैव टेंडेंसी टू अटेन इक्विलिब्रियम। ओके, तो समहाउ वो कैसे भी फॉरवर्ड बैकवर्ड कैसे भी शिफ्ट होके वैल्यू शुड बी इक्वल टू K, है ना? QC have tendency to reach on K, ये ज्यादा है, दैट टाइम ये बैकवर्ड शिफ्ट होके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को कम करके उसके इक्वल हो जाएगा। ये कम है तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर करके उसके इक्वल हो जाएगा। तो इट हैज टेंडेंसी टू बिकम इक्वल टू K, क्लियर? concentration quotient have tendency, it has tendency to convert to gain equal to reach at value which one is equal to K, or for a particular reaction equilibrium constant K, either Kc or Kp is constant for a particular reaction. Okay, ये K only with temperature K change हो जाता है बेटा, टेम्परेचर के साथ तो K की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हमेशा जब भी K देते हैं उसके साथ आपको टेम्परेचर देते हैं। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे K वैल्यूज ऑलवेज कांस्टेंट, क्लियर? और समटाइम इफेक्ट ऑफ प्रेशर से भी पूछते हैं, व्हाट इज अ चेंज इन प्रेशर? चेंज किया हमने प्रेशर तो K की वैल्यू में क्या चेंज आया? तो K वैल्यू इज अफेक्टेड और नॉट अफेक्टेड? नो, ओनली जैसे आप प्रेशर चेंज करेंगे तो डायरेक्शन में चेंज होके रिएक्शन अगेन अटेन K वैल्यू सेम। ओके, प्रेशर जैसे आप करेंगे तो रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे शिफ्ट होके वापस से रिएक्शन किस में आ जाएगी? हमारी सेम K की वैल्यू में। तो प्रेशर के साथ कैटलिस्ट के साथ K की वैल्यू चेंज नहीं होती, K की वैल्यू ओनली चेंज होती है किसके साथ? ओनली वन फैक्टर है दैट चेंज K वैल्यू, दैट इज ओनली टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है, अदरवाइज K वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन नो चेंज। ओके, और हाउ K रिलेटेड टू गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, RT log K। यस, फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन डेल G वाला जो हमारा इक्वेशन है,
del G is equal to delta G node plus RT नेचुरल लॉग के, है ना, हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ के आए हैं। और डेल जी नोट वैल्यू से हम क्या डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इक्विलिब्रियम। ओके, ये अभी के मैंने लगा दिया है, अदरवाइज के नहीं आना चाहिए। के की प्लेस पे क्या आना चाहिए? क्यूसी। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्यूशियंट आना चाहिए यहाँ पे, नॉट के। बट सपोज आई अप्लाई हियर कंडीशन डेल जी इज इक्वल टू 0, दैट केस में फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम, दैट केस में डेल जी बिकम्स फॉर दैट रिएक्शन इज 0, मीन्स QC इज इक्वल टू KC। ओके, तो डेल जी बिकम्स 0, तो दैट केस में डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू माइनस RT 2.303 log 10. KC। मैं log 10 होना चाहिए ना? हाँ, ये log बेस 10 हो गया बेटा। नेचुरल log को हम ln से लिख रहे हैं और log बेस 10 को हम सिंपल log भी लिख सकते हैं। ओके, और Okay. इसी log बेस 10 की वैल्यू ही हम उसमें देख सकते हैं log टेबल में, इसलिए नेचुरल log को नहीं देख सकते हम। तो नेचुरल log को ऑलवेज कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2.303। ओके, अब नाउ सपोज, अब देखो डेल्टा जी नोड और केसी में रिलेशन देखते हैं। सपोज डेल्टा जी नोड इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो केसी क्या होगा? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स फ्री एनर्जी इज 0 एट इक्विलिब्रियम, बट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज नॉट 0। तो सपोज दिस वन इज नेगेटिव, तो व्हाट इज के? केसी क्या होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव? ये नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना? पॉजिटिव पॉजिटिव। यस, तो दैट केस में केसी इज पॉजिटिव और डेल्टा जी नोड इज पॉजिटिव। देखो नोड लगा रही हूं मैं, डेल जी नहीं लिख रही हूं। डेल जी तो ऑलवेज 0 होगी व्हेन रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो डेल्टा जी नोड इज पॉजिटिव, तो केसी इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव है तो ये केसी क्या होगा आपका सोल्व करने पे? ओवरऑल Negative. नेगेटिव साइन के साथ है यहाँ पे, तो वो भी नेगेटिव होगा मैम। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। यस, और जब डेल्टा जी नोट 0 हो, ये 0 कब होगा बताओ? जब ये पूरी टर्म आपकी 0 हो जाए, है ना। तो इसको 0 होने के लिए ये आपका जो केसी की वैल्यू, log 1 की वैल्यू 0 होती है बेटा। क्या होती है 1 की वैल्यू? log 10 की वैल्यू 1 और log 1 है कहीं। ओके, तो log 1 की वैल्यू होती है 0, तो इट मींस केसी वैल्यू इज इक्वल टू 1। ओके, डेल्टा जी नोड व्हेन रिएक्शन रीच्ड एट इक्विलिब्रियम डेल जी बिकम्स 0 फॉर दिस। पर डेल्टा जी नोड कब 0 होगा? जब केसी की वैल्यू क्या हो? 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो। इन दैट केस में डेल्टा जी नोड इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, यस। और स्पॉन्टेनिटी के लिए हम पढ़ ही चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आई थिंक क्लियर हो गया है। किसी रिएक्शन का अगर एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखते हैं? होप सो क्लियर हो गया। ओनली गैसियस स्टेट वाले को हम एक्सप्रेशन में लिखेंगे। ओके, और ये ग्राफ में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये ग्राफ आपको हमेशा ऐसे ही ड्रॉ करने हैं, राइट? लाइक दैट। जैसे मैंने कोई रिएक्शन लिखी आपको, decomposition of calcium carbonate, it is also reversible reaction but it is heterogeneous equilibrium. Calcium oxide also solid plus CO2। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, राइट द एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो अगर हमें केसी की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में लिखना है तो
concentration of CO2, ओनली CO2 लिखेंगे. इट इज सॉलिड, इट इज सॉलिड, इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में. ओके, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को हम इग्नोर करते हैं. ओके, ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम ये कंसीडर करते हैं कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी मान के चलते हैं. और पीसी की टर्म में लिखना हो, प्रेशर की टर्म में, तो पार्शियली प्रेशर ऑफ CO2 इन रिएक्शन मिक्सचर, लाइक दैट, ऐसे. इज इट क्लियर? बट कल मैंने एक इक्विलिब्रियम दिया था Yes, आपको, है ना, और उसका आज मैं प्रैक्टिकल असाइन करूंगी, है ना. कॉम्प्रिहेंसिव से सीधा आपको वैसे ही PDF बना के भेजती हूँ, उसको सीधा लिख लेना आप लोग, लाइक दैट. फेरिक आयन, अब देखो मैंने यहाँ एक्वस लगाया है. नाउ थायोसाइनाइड आयन, अगेन हियर एक्वस, and form deep red color thiocyanide complex, ferric thiocyanide complex, like that. Overall charge is +2. It is also in solution, aqueous. Aqueous means it is not in pure solid form, it is not in pure liquid form. It ferric chloride solution in water, potassium thiocyanide solution in water, right? तो इस रिएक्शन का अगर इक्विलिब्रियम लिखना हो हमें, तो दैट टाइम हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में, गैसियस रिएक्शन को ही हम केपी की टर्म में लिख पाएंगे, है ना, प्रेशर. बट इस रिएक्शन को हम कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में इजीली लिखेंगे. ओके, यहां हम इग्नोर नहीं करेंगे. क्यों नहीं करा मैंने इग्नोर? क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में है, प्योर फॉर्म नहीं है. राइट चिल्ड्रन? अगर ये भी फेरिक क्लोराइड अगर हमारा सॉलिड फॉर्म में होता तो मैं इसको नहीं कंसीडर करती. बट फेरिक क्लोराइड यहाँ एक्वस सोल्यूशन में है, और एक्वस सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम में एक्सप्रेस करने में कंसीडर करते हैं. ओके, तो इस तरह आप रिएक्शन को देख के, अगर प्योर फॉर्म है, वाटर भी है, तो उसको भी इग्नोर करना है. ओके, एक और ऐसा ही ईस्टर एसिटिक वाला लेते हैं, लाइक दैट. एसिटिक एसिड एक्वस, अगर एक्वस लिखा है एसिटिक एसिड का वाटर में सोल्यूशन, तो एक्वस हो गया है. इथाइल एल्कोहल एक्वस बना हमारा ईस्टर, सपोज CH3COO(C2H5). एक्चुअली इस रिएक्शन की भी एक एसिड का H नहीं जाता है, यहाँ पे एसिड का OH जाता है, एल्कोहल का H जाता है, तो ईस्टर बनता है. ईस्टर ही भी हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, और वाटर इज प्योर लिक्विड. ओके, तो जब हम, और ये कौन से टाइप का एग्जांपल है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? होमोजेनस. इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, है ना, बिकॉज ऑल आर इन लिक्विड स्टेट में. बट लिक्विड स्टेट है, बट दीज आर नॉट प्योर फॉर्म. ओके, ये सब हमारे एक्वस सॉल्यूशन है. एक्वस सॉल्यूशन है, तो इनके जब एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, तो वाटर को इग्नोर करेंगे. हियर वी राइट ओनली ईस्टर, water because water in pure form, and acetic acid and ethyl alcohol. Okay, is it clear? तो गैसियस स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन को आपको एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यूज करना है. बाकी को क्या करोगे? इग्नोर कर दोगे, एक्सप्रेशन में हम यूज नहीं करेंगे. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पोर्शन. और जिस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हायर होगी, तो इट मीन उस रिएक्शन में प्रोडक्ट्स आर मोर स्टेबल. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी, तो इट मीन्स प्रोडक्ट्स आर लेस स्टेबल. ओके, प्रिडिक्टिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ केसी और क्यूसी की वैल्यू से हम बता सकते हैं. अगर क्यूसी लेस है, तो इट मीन रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, क्यूसी हायर है, तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी, लाइक दैट. और आई थिंक हियर एनी डाउट इन दिस पोर्शन? ये हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स. 60% रिएक्शन कंप्लीट. यस,
मैं कल कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, पर एक बार आप अच्छे से पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ेंगे. ओके, तो टुमारो वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट? यस. ओके, तो फर्स्ट आई एम टेकिंग अटेंडेंस. यस, अभी हमारी अटेंडेंस नहीं हुई ना आज. यस स्टूडेंट्स. Yes, thank you children. Now